350 plus people had registered, but we had only given access to 100 plus students जो specifically इस साल एग्जाम दे रहे हैं. That is basically so that I and Soumya जो है जो specific questions and queries हैं आप लोगों के, उसको हम लोग आंसर कर पाए. बिकॉज काफी ज्यादा लोग जब हो जाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली समझ में कुछ ज्यादा आता नहीं है, एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल्सो आवर गेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. सो हम ऐसे और भी बहुत सारे वेबिनार्स कराते रहेंगे, बट सिंस दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर करंट अफेयर्स एंड सौम्या हैड अ वेरी unique strategy, so I felt that I should request her for this session. So I think she has joined. Soumya, am I audible? Good evening, Dipanshu sir. You're audible. Am I audible? Yes, you're audible. So will you be using this device, right? Yes, yes. Okay, just give me a second. Yes. Good to see you, Soumya, and thank you for giving us time. मैं लोगों को ये बता रहा था before you joined कि आज आपकी meeting थी and still you managed to come back from the meeting. Saturdays are also not free for IAS officers. Even Sundays are not. So, Yes, sir. That is crazy. Good evening to everyone also, sir. A lot of aspirants have joined. I can see that. And as you mentioned, आज लखनऊ में एक काफी important meeting थी. But this is a very right time, sir, that you've chosen for summarizing and strategizing about current affairs, which is yeah. a major hurdle for everyone. Right. So, Soumya, I'll start sharing the slides. I think we will keep it very short and crisp because आप already थके हुए हो गए. I don't want to keep it a very long session. And thank you again, Soumya. Soumya has always been kind. Whenever I ask her कि students के लिए will you take out some time, she has never said no to me. So I hope that continues. So I'll quickly share the slides for all of you. And as I mentioned, everyone, please keep your mic on mute. आपके जो मेजर क्वेरीज थे मैंने फॉर्म में पहले ही ले लिए थे, तो आप सारे लोगों के क्वेश्चन मैंने स्लाइड्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं. उसके अलावा कोई अगर स्पेसिफिक क्वेरीज होंगे, वी विल टेक अप दोज क्वेश्चंस इन द एंड. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन एज वेल. सेकंड. I guess my screen is visible to everyone. Soumya, is it visible to you? It's visible. It's visible. Yeah. So I think current affairs के लिए one of the most important aspect is it is very vast, and always there is a problem कि because of the vastness and the diversity of resources, लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि उसको कैसे कवर किया जाए. So Soumya had a very different strategy per se, I would say. And जिस तरीके से nature of examination भी change हो रहा है, so I think Soumya can guide you all better about how to go about it. So Soumya, what I've done is, as I told you, कि मैंने एक general set of questions तो लिए ही हैं aspirants के, but what I've also done is कि हम लोग subject specific I have written down कुछ important topics and questions जो पहले आए हुए हैं. So उससे क्या होगा, एक थोड़ा trend analysis भी पता चल जाएगा, because see, because now you are already in the service for almost more than 5-6 years now, and even though you closely follow UPSC and you keep on guiding the aspirants, but कई बार क्या होता है कि there are certain questions which seem like an outlier. तो वो क्या होगा, आई हैव रिटन दोज डाउन एज वेल, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कीप ऑन ऑब्सेसिंग अबाउट दोज क्वेश्चन जो हमेशा यूपीएससी ना आउटलायर बना देता है, एंड दे कीप ऑन थिंकिंग कि अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. So I have done that exercise for all of you. But before we, proceed further to the session, as I had mentioned, कि I'll be sharing with all of you a bonus PDF. So Soma, what we have done is कि मैं और मेरी टीम ने we have compiled last 1.5 years का current affairs. So those are subject wise. तो ये क्या होगा कि we will be sharing to all the aspirants जो आज attend कर रहे हैं. तो we had received almost 350 plus registrations, but we have closed it only, you have allowed only 100 students.
जो स्पेसिफिकली एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया हमने रखा था कि जो लोग इस बार का एग्जाम दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फॉर 2024 पीपल, बट सम ऑफ देम आर आल्सो फ्रॉम 2025 एज वेल, बट बहुत लिमिटेड हमने 25 के स्टूडेंट्स लिए हैं, बिकॉज विल बी हैविंग मोर ऑफ दोज सेशंस. So before I proceed, I want you all to listen to Soumya for first, for a few minutes, because I want her to share her experience. And I tried to gather, Soumya, some of your images from Facebook and other platforms, जो मेरे पास पुरानी कुछ पड़ी थी, and the ones that I had recently. So one thing that I want to tell everyone about Soumya before she shares her experiences, कि जो नीचे आपको दिख रहा है ना, that I have taken from her Facebook profile, but I know that from before, क्योंकि शी इज वन ऑफ दोज पर्सन जिनको आप ये नहीं बोल सकते कि ना सिर्फ पढ़ाकू बच्चा था, ये सिर्फ पढ़ता रहता था. ऐसा नहीं है. शी हैज बीन एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट को अगर आप साइड कर दो, क्लियरिंग आईएएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लासिकल डांसर, basketball player, NCC cadet, good swimmer, and the credit is that she still performs these classical dances. अभी आप recently आपने देखा होगा, न्यूज में भी आया था कानपुर में. She has been doing fabulous job before, जब वो CDO थी कानपुर देहात में. अभी she is currently posted as the additional labor commissioner of UP. So Soumya, the floor is yours. Thank you so much, sir, for your kind words of appreciation. First of all, a very good evening to all the aspirants who've joined today's current affairs special session by the Panshu sir. ये बहुत अच्छा है कि इसमें सीरियस एस्पिरेंट्स ज्वाइन किए हैं जो इस बार 2024 में अपीयर करेंगे, और मई में ही 26 मई को एग्जाम है, प्रीलिम्स है इस बार. एंड ऑल्सो ये हम लोग इस समय फेब्रुवरी मिड, इनफैक्ट लास्ट ऑफ फेब में बैठे हैं, तो ये टाइम ऐसा होता है दैट करंट अफेयर्स बिकम्स इम्पोर्टेंट. बट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, so I had secured All India rank 4 in my first attempt in 2017. तो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम था उसमें my optional was geography, and उसके पहले I had done my BTech in electrical engineering from Motilal Nehru NIT Prayagraj, where I was a gold medalist. My hobbies, as you can see on this screen, are classical dancing, playing basketball. I had been C certificate, NCC holder, and all that. But coming to the service, क्योंकि आप सब लोग aspire कर रहे हैं to become UPSC, to become civil servants, तो हमेशा जब आप, तो आप प्रिपरेशन में काफी आगे बढ़ गए होंगे, जब आपने शुरू किया होगा 1-1.5 साल पहले प्रिपरेशन, तो देयर मस्ट बी अ वाई कॉम्पोनेंट, कि हम क्यों बनना चाहते हैं आईएएस. कहीं से मे भी इंस्पिरेशन मिला हो, या आपके घर में कोई हो, या आपने देखा हो, उसके बारे में पढ़ा हो, आपको अपील किया हो. So I will just in 2 minutes want to share with all of you, after spending 6 years in the service in Uttar Pradesh, कि it's such a beautiful service, और आपको इतनी varied opportunities on a daily basis मिलती हैं to transform your ideas into actual reality and ground level implementation. तो you can be an engineer, you can be a doctor, you can be a BA graduate, BSc graduate, जिसमें आप एक particular field में you can contribute. But when you become an IAS officer or an IPS or an IRS officer, जब आप UPSC क्वालिफाई करके एक सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो आप हर फील्ड में अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपको हर दिन एक नया चैलेंज, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आई वॉज ब्लेस्ड, आई वॉज लकी कि मुझे अलग अलग जगह काफी वेराइड काम करने का मौका मिला. जैसे एज ए ट्रेनी, सबसे पहले आप लबस्ता में जब आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जब आप जाएंगे तो आप एक प्रोबेशनर रहेंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में. तो 1 साल मैं सिद्धार्थ नगर में प्रोबेशनर थी. सिद्धार्थ नगर इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग. तो वहां पे बहुत चैलेंजेस पता चले. नेपाल बॉर्डर पे था वो डिस्ट्रिक्ट, फ्लड्स आती थी, तो फ्लड मैनेजमेंट, जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं जीएस पेपर 2-3 में, वो एक्चुअली मैं ग्राउंड लेवल पे वहां इंप्लीमेंट किया कि कैसे फ्लड प्रूफिंग करें अपने डिस्ट्रिक्ट का, मॉक ड्रिल्स कैसे करें, कैसे फ्लडिंग से बचाएं अपने डिस्ट्रिक्ट को. फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन सिद्धार्थ नगर टू वर्क इन द एजुकेशन सेक्टर. So we talk about smart education, smart classes. Actually, government schools में कैसे smart classes का impact हो सकता है on learning outcomes of children, वो करने का मौका मिला. After Siddharth Nagar, I got an opportunity to work as SDM in Ghaziabad. So I was joint magistrate in Modi Nagar, Tehsil of Ghaziabad. वहां पे शुगर मिल के इश्यूज, फार्मर के इश्यूज, नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं, कैसे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते हैं, कैसे बैलेंसिंग आउट करते हैं अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ये सीखने का मौका मिला, ये करने का मौका मिला. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को फेस करना और उसको कैसे आप डील करते हो, उसका मौका मिला. आफ्टर दैट आई वाज आल्सो इन फॉर 3 months गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. तो आप लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएंगे,
2-3 महीने के लिए वहां किसी ना किसी मिनिस्ट्री में आप असिस्टेंट सेक्रेटरी बनते हैं. सो आई वॉज इन डिफेंस प्रोडक्शन. वहां पे यू कैन यूज योर, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बीटेक, तो आई डेवलप्ड अ वेबसाइट देयर कॉल्ड आईडेक्स, कि कैसे हमारे स्टार्टअप से हम डिफेंस कंपोनेंट्स ले सकें. एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस वाज चोजन एज वन ऑफ द टॉप 8 प्रेजेंटेशंस टू प्रेजेंट माय आइडियाज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. तो उन्होंने पूरा सुना, अपने आइडियाज को सीधे आप टॉप मोस्ट लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हो, पॉलिसी मेकिंग का आप पार्ट बन रहे हो. अर्लियर इन योर आप सर्विस में आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में होते हो, बट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाते हो तो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट आप बनते हो. तो आपके जो आइडियाज है, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करें, वो सब सीखने को मिला वहां पे. एंड आफ्टर दैट आई वाज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर. तो जो आप फोटो देख रहे हैं सबसे राइट साइड में, इन विच यू कैन सी ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, के पीछे ऑनरेबल गवर्नर भी है. दिस इज इनसाइड अ विलेज. ये गांव था कानपुर देहात का जिसका नाम परौक था, और ये गांव नेटिव गांव है हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट का. तो यहीं पे वो पैदा हुए थे, यहीं पे उन्होंने पढ़ाई की थी. वो अपने गांव को अच्छा बनाना चाहते थे. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन दैट एज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर. तो वहां पूरा स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट मैंने दिया. जैसे हम स्मार्ट सिटीज पढ़ते हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो, वैसे ही स्मार्ट विलेजेस, मतलब हर घर में पानी हो, टैप कनेक्शन, हर घर में टॉयलेट हो, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, क्लासेस हो, प्लेग्राउंड्स हो, ओपन एरियाज हो जिम के. तो वो पूरे स्मार्ट विलेज बनाया था. और वही ऑनरेबल पीएम वाज हैविंग अ लुक एट द एग्जीबिशन इनसाइड द विलेज. आई वाज शोइंग हिम कि क्या क्या इस विलेज में अचीवमेंट्स हुए हैं. बीच में जो पिक्चर है, दिस इज रिसेंटली भारत मंडपम की. सो करेंटली आई एम एडिशनल लेबर कमिश्नर, और ये लेबर डिपार्टमेंट की मीटिंग थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें लेबर के इश्यूज डिस्कस हो रहे थे. एज एडिशनल लेबर कमिश्नर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर क्लास. एंड एज यू ऑल नो, आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई देता है तो वो एमएसएमई सेक्टर देता है, और एमएसएमई में मैक्सिमम लेबरर्स इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में. सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स. एक अटल रेजिडेंशियल स्कूल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, जिसमें लेबरर्स के बच्चों को, और जो कोविड में अनाथ बच्चे हुए थे और उनको बच्चों को रेजिडेंशियल फ्री स्कूलिंग फैसिलिटी दी जा रही है. सो दिस इज टेकन बाय द लेबर डिपार्टमेंट, लुक्ड आफ्टर बाय द लेबर डिपार्टमेंट. तो जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि मेरा इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय पे था, विच आई कुड नॉट आंसर एट दैट टाइम. मेरे इंटरव्यू में 184 मार्क्स थे, पर पहला ही क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाई थी, जिसमें इंटरव्यू पैनल ने मुझसे पूछा था कि कौन से ऐसे स्कूल्स है रेजिडेंशियल स्कूल्स जो गवर्नमेंट चला रही है बच्चों बच्चियों के लिए. तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसी लाइंस पे अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स चलाया जा रहा है फॉर चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स. सो यहाँ पे वो करने का मौका मिलता है. सो एज आई ऑल्सो गॉट फेलिसिटेशन फ्रॉम ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी, जो मैंने आईडेक्स की वेबसाइट बनाई थी. जब ये अटल स्कूल शुरू किया, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन टू होस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर इन वाराणसी. उन्होंने इनॉग्रेट किया अटल स्कूल को, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया. सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड challenges and opportunities that you will get once you cross that UPSC line. So just in 3 minutes, 4 minutes, I wanted to share this insight with all of you. Over to you, sir. थैंक यू सो मच सौम्या. एंड एक्चुअली लॉट ऑफ क्वेरीज भी थे, मैं फॉर्म देख रहा था तो आई हैड स्पेसिफिकली एक मैंने कॉलम बनाया था कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस फॉर सौम्या. सो लॉट ऑफ क्वेरीज वर अबाउट दिस ओनली कि व्हाट बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द सर्विस फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years नाउ, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आपका. तो बाय होपिंग नेक्स्ट ईयर यू विल बी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. और मैं और सौम्या जब भी हम लोग मिलते हैं, वी ऑलवेज कीप ऑन hoping that she joins as a district magistrate of whichever district I am staying in right now. But yeah, I mean, बहुत ही vast experience है, as you can see, and thank you for highlighting, because generally लोग आईएएस के साथ वो डीएम एंड सेक्रेटरी का ही नोशन रहता है, एंड दे नेवर रियली अंडरस्टैंड मच कि कितना डाइवर्स काम करने का आपको मौका मिलता है. So moving on to the next part. So just a quick recap, Soumya, मतलब just the trend analysis since 2016. So plus minus 2-3 questions आप कर सकते हो. So considering the role of current affairs, तो as you can see कि 2022 में around 21 questions आए थे from current affairs, and 2023 में there were around 24 questions. In fact, last अगर आप देखेंगे 4-5 सालों से the number of questions actually current affairs के बहुत ज़्यादा increase भी हो रहे हैं. And rightly so, because I think the commission wants people to be aware of whatever is happening around. Because मुझे याद है 2015 के पहले, सौम्य would also relate to it, बहुत ज़्यादा static oriented paper होता था before you had given the attempt.
एंड इट यूज टू बी वेरी स्टैंडर्ड, दो तीन चार क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर्स के तो आ गए, मेंस में फिर भी आ जाते थे बट प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं आते थे। बट आई थिंक 2016 सडनली वाज एन आउटलायर, जब द कट ऑफ वेंट, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट 116 गया था प्रीलिम्स में। सो सौम्य, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के इंक्रीज हो रहे हैं? Yes, so in fact, 2016 was the year in which I appeared in the exam. Yeah, just yeah. जब 116 का गया Yeah, था, it was मेरे one of the highest. 134 थे, या मेरे 134 थे प्रीलिम्स में। एंड आई कंट्रीब्यूट किए, मेरे 134 मार्क्स आए थे, वो प्योरली मुझे लगता है मेरे करंट अफेयर्स की स्कोरिंग से आए थे, क्योंकि मेरा स्टैटिक पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं था। क्योंकि एक डेढ़ साल का ही पढ़े थे, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जितना भी कर पाए थे, तो स्टैटिक उतना ज्यादा नहीं था। बट मैंने एक डेढ़ साल करंट अफेयर्स काफी अच्छे से कवर किया था। और मतलब मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने अपने प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपने टाइम पे अटेम्प्ट किए थे। तो ये जो मेरे मार्क्स आए थे, वो दैट वाज मेजरली एट्रीब्यूटेड टू माय गुड परफॉर्मेंस इन करंट अफेयर्स। दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस जो आप लोग देख सकते हैं अपने सामने, कि नाउ अगर आप आज के डेट पे यूपीएससी में 24 25 ऑनवर्ड्स अपेयर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स बिकम साइन क्वा नॉन। मतलब आप देखो, हर बार मतलब एवरेज 17-18% आ रहा है, और रिसेंट ईयर्स में 20% 19% तो आ ही रहा है अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। सो Yeah. करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका प्रिपरेशन में अगर आप 100% टाइम दे रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से 60-70% टाइम आपको करंट अफेयर्स में देना चाहिए। और करंट अफेयर्स समझ भी तभी आएगा जब आपके बेसिक्स स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग होगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट लेट्स से आईआर में स्ट्रांग होगा, तभी आपको आईआर का कोई भी करंट अफेयर समझ आएगा और याद रहेगा। Right. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। सो बेसिकली ये सौम्य, दीज आर लाइक मोर ऑफ जनरिक क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स को लेके भी है, बट उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रिपरेशन। आई थिंक वील पिक दिस अप इन द लास्ट। बट जनरली एक बहुत जो कॉमन सा क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक से कैसे लिंक करना है, जैसा अभी आपने बताया, वी विल डिस्कस ऑन ऑल ऑफ दिस। करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम अ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो अभी भी एड्रेस नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना टाइम हो गया है। मतलब 6-7 साल से हम लोग तो सुन ही रहे हैं, बट अभी भी देयर इज नो श्योर शॉर्ट मैकेनिज्म जहां पे हम देखें कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स ये बोल दें कि हाँ एक ही सोर्स है और इससे हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा। देन देयर वर सम क्वेश्चंस कि एडिटोरियल्स में कितना टाइम दें और बाकी पोर्शंस ऑफ न्यूज़पेपर में कितना टाइम दें। एंड देन ऑफ कोर्स रिलेटेड टू नोट्स मेकिंग, कि वी शुड बी मेकिंग डिजिटल नोट्स और वी शुड बी मेकिंग पेपर बेस्ड नोट्स। व्हाट आर द डिफरेंस ओपिनियन ऑन दैट? So, so I think let's take it one by one. So I think the first question is majorly related to ki, what should be the source, and how, which areas to focus. Over to you, Samya. Sir, I will share my strategy with Yep. all the aspirants today, and I will also request that कि आपको you can just add in wherever you feel Yeah, कि yeah. आज के ट्रेंड के हिसाब से what all is more important. ये डायलेमा तब भी था और अभी है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। एंड यहाँ पे दो न्यूज़पेपर आप सामने देख रहे हो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। मेरे टाइम पे आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, एंड मेरे सामने इवन एक वन पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट और बहुत सारे और जो कई कई अच्छे आर्टिकल्स निकल आते हैं, और अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, टीओआई में कभी कुछ निकल आया, मिंट में आ गया, इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ अच्छा आ गया, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि कैसे कैसे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। देन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी आई रियलाइज्ड कि न्यूज़पेपर सिर्फ एक प्राइमरी सोर्स होता है ऑफ करंट अफेयर्स। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से कि मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं और पूरे एक एक चीज याद रख लूं। आपको याद वो न्यू करंट अफेयर्स तभी होगा जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करेंगे विथ अ वीडियो, विथ समथिंग, विथ क्वेश्चंस, विथ एमसीक्यूज, विथ मेंस क्वेश्चंस, एंड देन विथ अ मंथली पीडीएफ ऑफ एनी गुड, जो भी आप पीडीएफ एक फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स की समरी का मंथ वाइज। तो वो याद तभी रहता है। तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि पूरा पढ़ लेंगे और याद रख लेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं होती है। मैंने अपने टाइम पे द हिंदू मेजरली फॉलो किया था। डेली आई यूज टू गिव 2-2.5 hours टू रीड द हिंदू। अगर आप बिगनर हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे 6-7 months डाउन द लाइन आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं और उसमें पता चलता रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब आप यूपीएससी के लेंस से द हिंदू पढ़ रहे हैं, तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। यू शुड रिमेम्बर
your syllabus and you should keep the syllabus while reading the newspaper. I used to do that. ताकि syllabus पता है तो आपको पता है हिंदू में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. वो जो लोकल टाइप की न्यूज है वो छोड़ना है, एकदम पॉलिटिकल न्यूज है वो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना, सिर्फ एनालिटिकल न्यूज पढ़ना है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ना है. तो एक तो व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड ये पता होना चाहिए. सेकेंडली, हिंदू में पढ़ती थी, एडिटोरियल्स पढ़ती थी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आते थे वर्ल्ड अफेयर्स के, नेशनल अफेयर्स के, इकोनॉमिक्स के, वो पढ़ती थी. इंडियन एक्सप्रेस में नजर मार लेती थी एक बार पलट के, और जो एक्सप्लेन्ड पोर्शन होता था उसको पढ़ लेती थी. आजकल मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस में वो सेकंड पेज में क्यूआर कोड भी दे रहे हैं, वो यूपीएससी स्पेसिफिक क्विज टाइप Yeah. का दे रहे हैं. तो दैट कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि मैंने एक दो बार खोल के देखा एंड आई फाउंड इट टू बी रेलिवेंट. तो यू कैन जस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट कि वो इंडियन एक्सप्रेस वाला क्यूआर कोड का क्विज खोल के देख लिया कि क्या है उसमें. और हिंदू में भी एक सेक्शन आ रहा है आजकल FAQs का, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो देते हैं. आई थिंक Yeah. संडेज को आता है साइंस एंड टेक के साथ कि Yeah. क्वेश्चन देंगे उसका आंसर देंगे. वो भी मुझे हेल्पफुल लगा. तो मेजरली वन पेपर आप फॉलो करिए. मैं हिंदू करती थी और साथ में इंडियन एक्सप्रेस भी देख लेती थी. अब आता है कि बाकी किसी अच्छे न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा आर्टिकल आ गया, वो फिर आप अपना जो भी आप, जैसे आप दीपांशु सर ने PDF बनाया उसमें सब कुछ कंपाइल करके इसीलिए आपके लिए एक प्लेटर पे लाया गया कि आपका टाइम ना वेस्ट हो कि आप 50 न्यूज़पेपर पढ़ो. आप फिर वो PDF पढ़ लो, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तो आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा. राइट. सो आई थिंक जैसे सौम्य ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे लोग, आप में से कुछ लोग बिगिनर्स भी हैं, बट मेजरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जो सेशन में ज्वाइन किया हुआ है वो लोग दे आर फ्रॉम दी बैकग्राउंड, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 2024 का. आई थिंक कुछ बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपने करी होगी. सो आई थिंक सौम्य मेजरली ना, मतलब जो अभी के मुझे लगता है स्पेसिफिकली जो ये लोग स्टक होते हैं, दे गेट स्टक ओवर दिस पॉइंट कि हमने नोट्स नहीं बनाए थे फॉर एग्जाम्पल, जो पहले नहीं पढ़ा, या फिर अगर पढ़ा हिंदू पढ़ा तो हिंदू पढ़ लिया. अब क्या, शुड वी फॉल बैक ऑन कंपाइलेशंस या क्या करें? मतलब दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज जो मेरे को हर दिन ये सवाल आता है. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? Sir, it is actually a very major doubt and a very valid doubt. I will take 1 minute to share my experience. तो मैं पहले क्या करती थी कि न्यूज़पेपर पढ़ती थी और न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अंडरलाइन करती थी, हाईलाइट करती थी. इनफैक्ट न्यूज़पेपर कट करके भी एक रजिस्टर बनाती जाती थी कि ये पॉलिटी का बना लिया, आयात का बना लिया, सोशल इश्यूज का बना लिया, इस तरह से अलग अलग रजिस्टर्स. बट ओवर 2 months 3 months आई रियलाइज कि वो बहुत टीडियस है, बहुत फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एंड इट्स नॉट making me more efficient and it's not leading to smart work. Then I realized कि जैसे ये PDFs हैं, compilations आते हैं, these are very very handy. अब एक डाउट आता है कि हम खुद से नोट्स बनाएं या कंपाइलेशन पढ़ें. तो मैंने ये किया था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी. रात में मैं 10 minutes वाला वीडियो, इनफैक्ट उस समय दीपांशु सर का आता था, तो मैं सर के वो वीडियो देख लेती थी अंडर 10 minutes रात में. फिर एक वेबसाइट उस समय, जो भी मैं उस समय जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया फॉलो करती थी, तो वहां से MCQs प्रैक्टिस कर लेती थी. करंट अफेयर्स डेली का डेली ऐसे रेडी होता जाता था. मंथ के एंड में जो भी एक मंथली मैगजीन आपको अच्छी लगती है, उसमें मोटा मोटा करंट अफेयर्स कवर हो जाता है. वो आप मंथ के एंड में कंपाइलेशंस रेफर कर लीजिए. लेकिन अगर आप सिर्फ कंपाइलेशंस के भरोसे बैठेंगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा, बिकॉज यू हैव नॉट रेड द एक्चुअल आर्टिकल ऑफ द न्यूज़पेपर. So for me, reading newspaper and complementing it with compilation was important. तो मैं अपने नोट्स नहीं बनाती थी न्यूज़पेपर के, मैं पढ़ लेती थी, प्रैक्टिस कर लेती थी क्वेश्चंस, और कंपाइलेशंस को ही अपने एक तरीके से वही नोट्स मेरे होते थे. Right. So I think and this is the same thing I've been telling all of these students also कि compilation is like a supplement. मतलब अगर आप वो सोच रहे हो कि बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ में मैंने बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा एंड सडनली वो कोई जादू की घुट्टी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ लिया और रट लिया, और पढ़ भी लोगे आप लेकिन याद नहीं रहेगा. व्हाट यू राइटली मेंशनड इज कि वो आप कोई फायदा नहीं है ना. मतलब आप उसको कंपाइलेशन को पढ़ने में 5-6 दिन वेस्ट करोगे एंड देन उसको वो आपको याद भी ना रहे. उससे बेटर तो कोई स्टैटिक का टॉपिक ही पढ़ लेते, मे बी दैट विल गिव यू अ बेटर ROI इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. So as rightly mentioned by Soumya, so we'll take up the next set of topics. Yeah, Soumya, what I've done is जैसे I've divided major portions, जैसे international relations से generally क्या आ रहा है and what can be the possibility of some of the questions. So I've also done a predictive analysis also, so that the students जो है उन्हें idea लग जाए. सो लास्ट 7-8 सालों में कौन कौन से मेजर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो एज यू कैन सी दैट जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा डायनेमिक है. Yesterday I was at Raisina Dialogue and I could see the kind of discussions that were happening, and and whatever they were discuss जो हो कर रहे थे वो लोग, and I could see कि
there were so many questions in the previous years जो उनके डिस्कशन से आए थे, but not saying that कि आप लोग जाके राइसीना डायलॉग अटेंड करो, टाइम नहीं है, but just the idea is that you have to be abreast with whatever is happening. And I think जो सौम्या आपने बिगनिंग में बोला कि PYQ देख लो एटलीस्ट, so that you can limit yourself कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं. So Soumya, any thoughts on how did you cover international issues during your preparation? अगेन सर, एज यू राइटली मेंशन कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसकी बेसिक्स हमें बहुत मतलब डाउटफुल होती हैं. तो सबसे पहले कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशन में अगर करंट अफेयर्स का आर्टिकल आता था, कोई भी न्यूज आती थी हमारे टाइम पे, फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया रिलेशनशिप आ रहा है, यूके रशिया रिलेशनशिप आ रहा है, वो आर्टिकल तो मैं पढ़ लेती थी एडिटोरियल का, बट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर होती थी क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर थे. देन आई रियलाइज कि इंटरनेशनल रिलेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्योंकि आज कुछ भी हो रहा है, अगर इसराइल हमास हो रहा है या फिर रशिया यूक्रेन हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत लंबा बैकग्राउंड है जो न्यूज़पेपर आपको नहीं बताएगा. जो आपको आपकी, या तो अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो, आप जिन भी मेंटर या टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको बता देंगे, या कोई बुक आप पढ़ रहे हो तो वो आपको बता देगा. सो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस कवरेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इशू का हम पूरा बैकग्राउंड समझ लें ताकि हम वो करंट अफेयर्स की न्यूज समझ पाए. और ये सब करने के लिए आप, फॉर एग्जाम्पल दीपांशु सर के बहुत अच्छे आईआर के नोट्स हैं, सो यू कैन जस्ट फर्स्ट गो थ्रू दोज बेसिक नोट्स एंड बेसिक बुक, और पहले आप बेसिक समझिए कि क्या चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. तो दो चीजें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, फर्स्ट की अलग अलग देशों की बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशनशिप्स, एंड सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया का स्टेक क्या होना चाहिए एज एन इंडियन, मतलब एज अ फॉरेन सर्विस में आप कल जाएंगे तो व्हेन यू विल बी एन आईएफएस ऑफिसर, तो आपको यू शुड ऑलवेज पुट इंडियाज इंटरेस्ट फर्स्ट. तो आपके हर करंट मतलब हर मेंस के आंसर में ये दिखना चाहिए दैट व्हाट आर द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी इंडिया स्टैंड इन दिस, इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे. तो दिस वाज वन बेसिक थिंग जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती थी. लाइक सर हैज जॉटेड डाउन 10 ऑड पॉइंट्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हिच आई थिंक सर कैन एक्सप्लेन अच्छे से क्या क्या है. बट फॉर मी द स्ट्रेटेजी फॉर आईआर फॉर करंट अफेयर्स वाज कि बेसिक समझ ले, बेसिक नाटो एंड यूएन एंड एवरीथिंग का बैकग्राउंड समझ ले, एंड देन करंट अफेयर्स में जो जो भी चीज न्यूज में है वो फैक्ट याद हो जाता है जब आप बेसिक समझ लेते हैं. नंबर वन. नंबर टू, जितनी भी ये फैक्चुअल टाइप चीजें कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कौन सा ऑफिस कहाँ पे है, वो तो सिंपल फैक्ट है, वो आप याद कर लीजिए. मैं स्टिकी नोट्स बना के चिपका लेती थी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगता था. फिर नंबर थ्री, कॉप्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं अलग अलग इश्यूज पे, वो न्यूज में आएगी, वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी के लिए, वो अच्छे से पढ़ लीजिए. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएंगे आईआर के, वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं. तो भले ही आपको बैकग्राउंड भी पता है, आपने टॉपिक भी पढ़ा है, बट कई बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये तभी आप कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस इन योर मॉक पेपर्स, एंड जो भी आप प्रीलिम्स के पहले मॉक्स देंगे. तो जब वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा एमसीक्यू के लिए आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा. एंड इंटरनेशनल रिलेशंस याद रखने के लिए ऑलवेज यूज मैप्स. मैं नोट्स में देख रही थी विच दीपांशु सर हैड शेयर्ड विद मी कि बहुत ज्यादा मैप्स, वर्ल्ड मैप बना बना के, एरो डायग्राम बना बना के याद किया गया. दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर आईआर. कोई भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझनी है, अब इसराइल हमास ऐसे नहीं समझ आएगा कितना भी पढ़ते रहो, बट एक मैप बना लोगे तो समझ आ जाएगा, अच्छा वो एक टुकड़ा ऑफ जमीन है जिसके लिए लड़ाई चल रही है. सो यूज मैप्स. फैक्ट्स याद करने के लिए भी मैप यूज करिए. अपने दिमाग में कुछ कुछ एक्रोनिम्स बनाइए जिससे ये आपको याद रह सके आईआर फॉर योर करंट अफेयर्स. राइट. सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने सिर्फ हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है कि सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द एग्जामिनेशन इन पास्ट फ्यू इयर्स. इनफैक्ट आज ही सौम्य में पढ़ रहा था, सो येस्टरडे व्हेन आई वाज एट द राइसीना डायलॉग, तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया ने स्पेसिफिकली जो नॉर्डिक कंट्रीज है उनके साथ मीटिंग चल रही है. आज के द हिंदू में देयर इज अ न्यू एक्रोनिम व्हिच हैज बीन कॉइंड. इट इज कॉल्ड एज NB8. सो NB8 स्टैंड्स फॉर नॉर्दर्न बाल्टिक कंट्रीज. तो नाउ दीज आर द थिंग्स दैट जनरली न्यूज़पेपर में आएगा, और हिंदू में ही आया बिकॉज, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं नॉर्डिक कंट्रीज के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है. सो दे हैव ऑर्डर्ड दिस आर्टिकल. सो नाउ दीज आर द थिंग्स दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. तो जैसे अभी सौम्य ने बताया कि इजराइल गाजा इशू इतना ज्यादा न्यूज में है, तो अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो, मतलब यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव. मतलब अगर आप उसने ढंग से नहीं कवर कर रहे हो, बिकॉज यूपीएससी अगर चलो इजराइल के बारे में नहीं भी पूछेगा, इट वाज गोइंग टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट.
बिकॉज इट इज सो मच इन न्यूज। एंड अभी G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था, अभी रेड सी क्राइसिस चल रहा है, हूथी रेबल्स ने पायरेसी चल रही है, आज ही न्यूज में आया कि इंडियन नेवी ने फिर रेस्क्यू किया हुआ है जाके। तो अगर इतनी सारी चीजें न्यूज में है, यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू इग्नोर दिस। एंड देन ऑफ कोर्स जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आज ही कल ही न्यूज आया कि जेमिनाई कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल रिजल्ट दिखा रहा है अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो उसको लेके रेगुलेशन आ सकता है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा, ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन साइन किया गया यूके में। हमारे मिनिस्टर भी गए थे वहां पे कि कैसे हम लोग एआई का एथिकल यूज कर सकते हैं। सो दे कैन बी क्वेश्चन ऑन दैट ऑल्सो, व्हाई इज ब्लेचली पार्क इम्पोर्टेंट, उसी जगह क्यों मीटिंग हुई। एंड देन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो आपको पता ही न्यूज में आती रहती हैं। सो IR आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पार्ट ऑफ पूरा यूपीएससी का। अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स का पोर्शन, मतलब जिसको एक्चुअली में मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एवरी डे इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट देन यस, व्हाट यू कैन डू इज, एज एज सौम्य ऑल्सो मेंशन्ड, कि अगर आपके बेसिक्स कवर्ड है, सो एटलीस्ट यू विल बी समवॉट एबल टू, इफ आई वुड से एलिमिनेट तो नहीं, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू यू नो क्लोज इनफ तो पहुंच जाओगे कि आंसर निकाल लो आप, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली भी नहीं पता है। सो दैट्स अबाउट IR। एंड मूविंग ऑन टू द वांट टू इंटरप्ट सर या एक चीज या के लिए। हाँ एआई हाँ आपने बहुत अच्छा मेंशन किया। मैं या इसमें जैसे आपने बोला, इफ यू इग्नोर टॉपिक्स लाइक दिस यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। अब फॉर राइट एग्जांपल एआई, अभी इसी महीने की योजना मैगजीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आई है। सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी योजना मैगजीन आ गई, उसमें पूरे 10 आर्टिकल्स हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ एआई किया है, इंडिया ने एक पूरा यूनियन बनाया है एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए, क्या क्या आईटी में चेंज, आईटी एक्ट में चेंजेस किए गए, देन इंटरनेशनल रिलेशन में भी एआई लॉज का। तो अब एआई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एआई इज वेरी वास्ट। तो एआई में आप टाइम दीजिए, आप पढ़िए एआई का हर डायमेंशन पढ़िए, क्योंकि उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, वो आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। सो टॉपिक्स विच आर इन द न्यूज एंड इन मैगजीन्स, एंड योजना कुरुक्षेत्र 2 गवर्नमेंट की मैगजीन्स आ रही हैं, उसमें पूरा पूरा एडिशन ही एआई का है। ऐसे टॉपिक्स तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर देना चाहिए उसमें, बल्कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन दे के आप प्रिपेयर कर लीजिए, दैट विल बी बेनिफिशियल। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बेनिफिट ही होगा। राइट राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब मैंने नोटिस भी नहीं किया था। इनफैक्ट सौम्य ने अच्छा पॉइंट आउट किया कि मेरे को पता ही नहीं था कि योजना जो है वो इस बार इज ऑन AI। बट एनीवे, आई मीन दैट्स द होल पॉइंट, कि मतलब इतना जैसे, मतलब एक ना सौम्य, आई वांट यू टू आल्सो डिस्पेल दिस मिथ अबाउट यूपीएससी इज, कि ये बहुत कॉमन एक नोशन आजकल हो गया है कि सर वो तो यूपीएससी जो है उसको पता ही है कि सब लोग ये पढ़ रहे होंगे तो ये सवाल नहीं पूछेगा। इंटरेस्टिंगली कल मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने मुझसे ये बोला कि सर अगर इजराइल गाजा इतना न्यूज में है तो यूपीएससी क्यों पूछेगा, उसे तो पता ही होगा कि सब लोग पढ़ रहे होंगे। डू यू हैव एनी टेक ऑन दैट? becomes important anyways, like you said कि जरूरी नहीं इसराइल गाजा हमास पूछ ले, मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड मतलब इसराइल गाजा तो पूछ ही सकते, जो कुछ न्यूज में है। सो वी शुड नॉट जस्ट बी कंप्लेसेंट कि अरे ये न्यूज में तो यूपीएससी क्यों पूछेगा। यूपीएससी विल आस्क दैट, हो सकता है वो किसी अलग डायमेंशन में पूछ ले, हम्म। अलग एंगल से पूछ ले, बट वो चीज कहीं ना कहीं घुमा फिरा के प्रीलिम्स मेंस में आ ही जाएगी। तो ये तो बिल्कुल हमारी रीजनिंग नहीं होनी चाहिए। जो न्यूज में है उसको तो 100% हर डायमेंशन हर एंगल से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बिकॉज आई रिमेम्बर सर, हम लोग के भी टाइम पे करंट अफेयर्स में कर्नाटका और जो स्टेट्स थे उनमें वाटर इशू, रिवर शेयरिंग पे बहुत या चल रहा कर्नाटका था न्यूज में। तमिलनाडु इशू, और कावेरी ऐसे, इशू वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, हाँ, या। दैट टाइम तो वो ऐसे में आ गया कि या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स।